Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about why the India has adopted a FPTP system of elections or representations. And we have also discussed about the comparison between the FPTP and PR system, that is a proportional representative system. Today in this module, we will cover the topic that is reserve of the constituency. As to make these things understand better, we will first go in a past. Earlier, the reservation system was being adopted in the constitution, and it was being started by the Pune Pact that was being signed between the B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in 1930. Okay? And what about this why a specific reservation is being given to the specific categories, that is SC or ST? So in this module, we'll discuss all these kinds of things. So let's start. We have noticed that in FPTP election system, the candidate who secured the highest votes in a particular constituency is declared elected. Okay, that we have already noticed. This often works in a disadvantage of the small social groups. Suppose an example, you can take example कि suppose SC और ST caste हैं या minorities हैं, if they are less in a numbers, तो their voter will also be less in a number, तो always the majority will get votes. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जो वोट होगा वो मेजोरिटी का होगा और मेजोरिटी को ही मिल जाएगा. So this was the threats in this type of the system, because the maximum vote, who won the maximum vote will make the government according to that particular system. So to resolve this particular problems, a few seats has been reserved for a specific category. This is even more sufficient in Indian social context, that we have had a history of the caste based discrimination. So earlier we have already discussed about the reservation on the basis of the caste is being covered under this particular category. Okay. In such a social system, the FPTP electoral systems can mean that the dominant social groups and the caste can be everywhere, and the oppressed social groups may contribute to the remain unrepresented. देखिए द मोन के यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, एक आ रहा है डोमिनेट ग्रुप और एक आ रहा है आपका अनप्लेजेंट ग्रुप. तो एक ऐसा ग्रुप है जो डोमिनेंट है सोसाइटी पे, तो वो कौन होगा? जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट होंगे. तो समटाइम इट माइट हैपन, जैसे हमने श्रीलंका की कंडीशन देखी थी लास्ट ईयर के चैप्टर में, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे सिन्हाला स्पीकर्स मैक्सिमम थे. सो मैक्सिमम होने की वजह से सिन्हाला स्पीकर्स ही अपनी वहाँ पे सरकार बनाते थे और उनको ही सारे बेनिफिट्स मिलते थे. तो जब मेजोरिटी का डोमिनेंस हो जाता है तो माइनॉरिटी रेवोल्यूशन करना शुरू करता है. टू रिजॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, द रिजर्वेशन सिस्टम इज बीइंग अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू. ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज एंड नीड्स टू प्रोवाइड अ वे टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द ऑपरेस सोशल ग्रुप्स. ठीक है, यानी हमारे जो इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने इन चीज़ों को पहले से ऑब्जर्व कर लिया था और उन्होंने एक रास्ता सजेस्ट किया जिससे जितने भी वो ग्रुप्स हैं, उन सारे ग्रुप्स यानी जो सोशल जो अंडर डोमिनेटेड ग्रुप्स हैं उनको भी बेनिफिट्स मिल सके. दिस इशू वॉज डिबेटेड इवन बिफोर इंडिपेंडेंट. द ब्रिटिश गवर्नमेंट use the separate electorate. The system meant that, इस सिस्टम का क्या मतलब है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का, कि कुछ स्पेसिफिक सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी ही कास्ट हो जाती है. टू मेक यू मोर अंडरस्टैंडेबल, जस्ट टेक अ लुक. सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि सपोज पीलीभीत की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पीबीटी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसकी इस बार सपोज जनरल सीट आई. जनरल मीन्स एनी वन हु बिलोंग टू SC ST OBC, किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो वो इसके लिए एलिजिबल है अगर जनरल सीट आती है. ठीक, अगर यही सीट आई है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, सपोज दैट इफ देयर इज अ सीट ऑफ SC, तो ओनली अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द कास्ट दैट इज SC कैन अप्लाई फॉर दैट. यानी अगर SC सीट आती है तो एक ऐसा पर्सन जो SC कास्ट को बिलोंग करता है केवल वही अप्लाई कर सकता है, दूसरा कोई भी पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता है. ठीक है, अगर मान लो कहीं पर सपोज डेट ST की सीट आती है, ST मीन्स एक ऐसा पर्सन जो ST कास्ट को बिलोंग करता है वही अपने आप को नॉमिनेट करा सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्वेशन, की वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आपकी रिजर्व कर दी गई है. ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर
देर इज़ अ सर्टेन सोशल ग्रुप यहाँ पर वी आर हेयर देखिए ओनली दोज वोटर्स हु विल बी एजेबल हु बिलोंग्स टू द कम्युनिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मैनी मेंबर्स एक्सप्रेस अ फियर्स दैट दिस विल नॉट सुटेबल फॉर आवर पर्पज देयरफॉर इट इज़ डिसाइडेड टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, वरना क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है उसमें सारे जनरल कास्ट के ही लोग होते हैं, क्योंकि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती वही जीतते और वही पहुंच जाते, क्योंकि उनके वोटर ज़्यादा हैं। और इंडिया में किसी भी सीट को विन करने के लिए मैक्सिमम वोट की ज़रूरी है। अगर पॉपुलेशन में किसी भी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी के वोट ज़्यादा हैं तो वो कास्ट और कम्युनिटी को बिलोंग करने वाला बंदा वैसे ही जीत जाना है। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए द सिस्टम वॉज बीइंग अडॉप्टेड दैट इज़ कॉल्ड द रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, और इस रिजर्वेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग लोकसभा और राज्यसभा में in the Lok Sabha and state legislative assembly scheduled caste और scheduled tribes was be given a reservation। ठीक है, और उसमें है कितना सा देख लीजिए, जो 84 सीट्स हैं are reserved for the scheduled caste and 47 seats were reserved for the scheduled tribes। ठीक है, तो ये टोटल रिजर्वेशन हो गया और रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो गई। ठीक है, एससी और एसटी, अब एससी और एसटी में वही सिस्टम है कि अगर 543 सीट्स हैं एग्जाम्पल के लिए, टोटल नंबर ऑफ द सीट सपोज 543 हैं, तो इन 543 सीट्स में से 84 सीट्स जो होंगी वो एससी की ही होंगी, यानी 84 एससी के कैंडिडेट आएंगे ही आएंगे, मैंडेटरी है। और 47 जो आएंगे वो किसके आएंगे, एसटी के। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है, कंफर्म है। तो ये रिजर्वेशन का मतलब है उनकी सीट रिजर्व्ड है। आप कहीं भी अगर एक सीट इशू होगी, जैसे मान लो पीलीभीत की सीट आती है, तो वो उससे पहले उसका डिक्लेरेशन होगा कि वो एससी की आ रही है, एसटी की आ रही है या जनरल आ रही है। जनरल मतलब कोई भी, एनीवन। एससी मतलब ओनली द पर्सन हु बिलोंग टू द एससी कास्ट, और एसटी मतलब ओनली द पर्सन हु बिलोंग टू द एसटी कास्ट। ठीक है, गॉट दैट पॉइंट। अब भाई ये नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जाता है वो आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। It is a very much important topic, and if any of the country is not having this kinds of the system where the election containing some kinds of the threats, so this will be a very much problematic things. So free elections should be there should be a free choice in front of the person। हमारे पास free choice होनी चाहिए, और दूसरा वो fair भी होना चाहिए। If it is not fair there will be a problem। ठीक है, The true test of any election is the ability to ensure the free and fair electoral process। यानी अगर फ्री और फेयर नहीं होगा तो पब्लिक जो है वो इलेक्शंस के सिस्टम को समझना या उसको अडॉप्ट करना छोड़ देगी। तो फ्री और फेयर की कंपल्सेशन ज़रूरी है। इफ़ वी वांट डेमोक्रेसीज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ रियलिटी ऑन द ग्राउंड, it is important that the election system is impartially and transparent। impartial हो, यानी ऐसा ना हो कि पार्शियलिटी करता हो, और ट्रांसपेरेंट होने की बहुत ज़रूरत है। each and everything which is being done by the election commission should be transparent, it should be visually properly। ठीक है, यानी हर वो चीज़ जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और इट शुड बी आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। The system of election must also allow the aspiration of the voters and the legislatives express the thoughts of the election result। ठीक है, अब देखिए पहला है आपका जो सिस्टम है कि हम कैसे मानेंगे कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो फ्री और फेयर है। तो उसमें पहली चीज़ आती है जो इंडिया में अडॉप्टेड है, वो है आपकी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड राइट टू कॉन्टेस्ट। अभी क्या है, जनरली वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी। अपार्ट फ्रॉम द लेइंग्स डाउन द मैटर ऑफ इलेक्शंस, द कॉन्स्टिट्यूशन आंसर्स द टू बेसिक क्वेश्चन अबाउट द इलेक्शन। हु आर द वोटर, ये यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी कि वोटर कौन है, और हु कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन, और कौन इलेक्शन में अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है। दिस टू क्वेश्चन इन बोथ ऑफ दीज द आर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो दैट वेल established democratic practice। You have already known that the democratic election required all the adult citizens of the country must be eligible to vote the caste। जैसे अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह पढ़ा था तो उसमें कुछ लोग एक्टिव मेंबर्स को वोटिंग का अधिकार था, बाकी को नहीं था। तो इंडिया में डेमोक्रेटिक इलेक्शन के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हर एक पर्सन जो एडल्ट है और 18 ईयर्स ओल्ड है उसको आपका वोटिंग का अधिकार मिल जाता है, यानी हर एक पर्सन को बराबर वोटिंग का अधिकार मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी को वोटिंग का अधिकार कम है तो किसी को वोटिंग का अधिकार ज़्यादा है। 1890 था, उसमें एडल्ट मीन्स एन इंडियन सिटीज़न अबव द 21 एज, यानी 1989 तक जो था वो आपको अडल्ट माना जाता था 1989 का।
ठीक है। और 89 के बाद इसमें रिडक्शन हुआ और अब जो एडल्ट माना जाता है वो 18 ईयर है। यानी इफ़ यू आर 18 ईयर ओल्ड और अबव देन यू आर एलिजिबल टू कास्ट योर वोट और यू कैन पार्टिसिपेट योर सेल्फ, ठीक है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव टू। यानी केवल वोटिंग का ही अधिकार नहीं मिल जाता है, आपको एज अ सेलेक्टिंग लीडर्स का भी अधिकार मिल सकता है। आप अपने आप को कॉन्टेस्ट भी करा सकते हो इलेक्शन में। अब देखो यहाँ पे इक्वालिटी मेंटेन हो रही है बिकॉज ईच एंड एवरी पर्सन इज हैविंग अ इक्वल राइट टू कास्ट देयर वोट इफ़ ही और शी इज़ एडल्ट। तो उसको वोटिंग का अधिकार मिल गया कि वो जाएगा और अपना वोट देगा। नेक्स्ट मोस्ट पॉइंट होता है कि हर एक के वोट की वैल्यू क्या है। सो इन इंडिया ईच एंड एवरी पर्सनस वोट वैल्यू इज ऑलवेज बी अ 1। हर एक की वोट की वैल्यू 1 है, चाहे वो वोट टाटा बिरला ने ड्राफ्ट किया हो, चाहे वो फार्मर ने ड्राफ्ट किया हो, कास्ट किया हो, हर एक वोट की वैल्यू 1 है, 1। दिस इज कंसिस्टेंट with the principle of equality, ठीक है, नॉन discrimination that we studied in the chapter of right. Many people thought that many things so today are giving the rights to the votes. Everyone irrespective of the educational qualification was right to vote, ठीक है। यानी अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो नहीं हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हर एक पर्सन अगर वो इंडियन है तो उसको वोटिंग का अधिकार है, ठीक है। अगर कोई ये सोचता है कि भाई ऐसे कोई वोटिंग का अधिकार है जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करता है, तो ऐसा नहीं है। बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैज़ अ फर्म बिलीफ इन एवेबिलिटी टू बर्थ ऑल द एडल्ट सिटीजन एज इक्वल इन द मैटर ऑफ द डिसाइडिंग व्हाट इज़ गुड फॉर सोसाइटी, द कंट्री एंड फॉर देयर ओन कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। यानी आप पे डिपेंड करता है आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करते हो क्या नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि कुछ पर्टिकुलर इलेक्शन के लिए स्पेसिफिक एज है। देखिए यहाँ पर, in order to stand a Lok Sabha assembly election, a candidate must have at least 25 year old। यानी कॉन्टेस्ट के लिए लोकसभा यानी एमपी बनने के लिए आपकी जो एज है वो 25 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। ये एक लीगल प्रोसेस है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई हमारी कि वाई वी आर हैविंग अ इंडिपेंडेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। इन द नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल डिस्कस द नेक्स्ट वन टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर chapter. Thank you.